أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 14. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کا تذکرہ ہو رہا ہے جو خالق کائنات کی طرف سے خاص طور پہ تحفہ تھا، اور جو خاص طور پہ ان کے کردار کے حوالے سے سورہ مریم میں بڑے امتیاز کے ساتھ جن کو بیان کیا گیا ہے. ان میں سے پہلی 4 کوالٹیز کو ہم نے پڑھ لیا. اس آیا میں مختصر ترین الفاظ میں 3 دیگر کوالٹیز کا تذکرہ ہو رہا ہے. سو ارشاد قدرت ہو رہا ہے وبرن، اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے نیک سلوک کرنے والے، اچھا سلوک کرنے والے، نیکی کا برتاؤ کرنے والے. کس کے ساتھ؟ بے والدئی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، نیک سلوک کرنے والے تھے، اچھا سلوک کرنے والے تھے. ولم یکن اور نہ تھے وہ، اور وہ نہیں تھے جبارن سرکش، عصیہ نافرمان. انشاءاللہ جبار کی وضاحت ہم بعد میں عرض کرتے ہیں. اور وہ نہیں تھے جبار کو آپ اس وقت سمجھ لیجئے جیسے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ظالم و جابر. تو آپ ظالم نہیں تھے، آپ جابر نہیں تھے، آپ سرکش نہیں تھے، عصیہ نافرمان، اور وہ گنہگار اور نافرمان نہیں تھے. اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا اور وہ اپنے والدین سے نیکی کرنے والے تھے اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس آیا کے اس حصے میں 3 بہت بڑی کوالٹیز کا تذکرہ ہو رہا ہے جو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار میں موجود تھیں، اور قرآن مجید نے ان کو یہاں پہ ہمارے لیے بیان کیا ہے کہ یہ کوالٹیز ہمیں سلامتی کا مستحق بنا سکتی ہیں. پہلی کوالٹی ہے وبرم بے والدئی ہے، کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی واز ڈیوٹیفل ٹو ہز پیرنٹس. وہ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار اور بڑے اطاعت گزار اور بڑی ہی نیکی کرنے والے ان کے ساتھ، اور بڑا اچھا سلوک کرنے والے اور ان کی خدمت کرنے والے تھے. اس جملے میں یعنی وبرن بے والدیہ میں ہمارے لیے 2 کوالٹیز کا تذکرہ کیا گیا، یا 2 پوائنٹس ہیں جس پہ ہمیں خاص طور پہ سوچنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے یا سوچنا چاہیے جس پہ ہمیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ ان کی ولادت سے لے کر ان کی تعلیم و تربیت کے جتنے مراحل ہیں وہ ہر چیز میں براہ راست خدا کی نگرانی ہے، اور ہر چیز براہ راست خدا کی نگرانی میں ہو رہی ہے. لیکن حضرت یحییٰ پھر بھی ہرگز اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے کہ چونکہ ان معاملات میں میں نے یا میری زندگی میں میرے ماں باپ کی طرف اس طرح سے میں محتاج نہیں ہوا کہ جیسے دنیا میں دیگر بچے ہوتے ہیں، لہٰذا اب والدین کی کچھ ذمہ داریاں یا کچھ میرے اوپر جو والدین کے حوالے سے حقوق ہیں وہ کم ہوں گے. بلکہ نہیں، وہ اپنے والدین کے وفادار تھے اور اطاعت گزار تھے. اچھا، یہ سوچنا تو خیر محال ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ حضرت یحییٰ ایک نبی تھے اور ایک نبی اپنے والدین کے بارے میں خدا نخواستہ یہ سوچتے کہ چونکہ میری ولادت اور پھر میری تعلیم اور تربیت اور یہ سارے مراحل خاص طور پہ خالق کائنات کی براہ راست نگرانی میں ہو رہے تھے، تو لہٰذا میں والدین کا شاید اس قدر مقروض نہیں ہوں، یا والدین کی اس قدر محنت میرے اوپر نہیں ہے، یا اس قدر ان کے حقوق نہیں ہے. اصل میں ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے آیا کہ اس ٹکڑے کے ذریعے، اس فریز کے ذریعے، کہ والدین کی فرمانبرداری کیوں ضروری ہے. ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں والدین کی فرمانبرداری کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اس وجہ سے کہ جب ہم محتاج تھے تو انہوں نے ہمیں پالا، لہٰذا آج وہ محتاج ہیں تو ہمیں ان کا آپ کہہ لیجیے بدلہ اتارنا ہے، وہ بدلہ دینا ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی. یہاں اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ والدین کی فرما برداری صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں پالا ہے اور ہم اس خدمت کے ذریعے ان قربانیوں کا بدلہ دینا چاہتے ہیں یا صلہ دینا چاہتے ہیں جو بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ کی تھیں. ہرگز نہیں. ان قربانیوں کا، ان محنتوں کا کوئی صلہ دینا ممکن ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر. بلکہ ایک لمحے کو فرض کر لیجئے کہ خدا نخواستہ اگر مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے اور وہ اس دنیا میں آیا اور کسی بھی وجہ سے اپنے والدین سے دور ہو گیا، مثلا جیسا کہ حضرت موسیٰ کی مثال آپ لے سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مصائب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے، اپنے ماں باپ سے دور ہو گیا کسی بھی واقعے کی وجہ سے.
अब वो जब बड़ा हो गया और बालिग हो गया और कमाई कर सकने वाला है और अपने सारे मामला ज़िंदगी के देख रहा है, तो तब मिसाल के तौर पे उसकी वालिदैन से मुलाकात होती है। सवाल ये है कि आया अब इसके वालिदैन के हुकूक इसकी गर्दन पर होंगे या नहीं होंगे? 100% होंगे। वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो एक ऐसे बच्चे के ऊपर या एक ऐसे शख्स के ऊपर हैं कि जिसको वालिदैन ने अपनी गोद में आने के बाद हर एक चीज़ को कमा हक़्क़ुहू बेहतरीन अंदाज़ से पूरा किया, इसके ऊपर भी बिल्कुल उसी अंदाज़ में वाजिब हो जाएँगी। लिहाज़ा इस कॉन्सेप्ट को हमने ज़हन से निकालना है कि वालिदैन के साथ नेकी, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, उनकी खिदमत, उनकी इताअतगुज़ारी, उनकी फर्माबरदारी इस वजह से है कि उन्होंने हमें बचपन में पाला था। हाँ, ये ज़रूर है कि वन ऑफ द एलिमेंट्स एक रीज़न ये भी हो सकता है हमारे ज़हन में आता है कि हाँ, ये हमारे साथ जब हम बच्चे थे तो वालिदैन ने हमें किस तरीके से, किस कदर मोहब्बत और शफ़क़त से पाला। तो हम इससे एक सबक ज़रूर ले सकते हैं कि हमें भी वालिदैन के साथ जब वो मोहताज हो जाएँ, तो तंगी और तुरशी और उसको बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसी कदर प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त के साथ उन अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करना चाहिए। सो पहली चीज़ ये है कि जैसा कि हज़रत यहया के मामले में हमने देखा कि वालिदैन की खिदमत, उनकी फर्माबरदारी, उनकी इताअतगुज़ारी इसलिए नहीं है कि सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि हम उनको बदला दे रहे हैं और जब उनका बदला पूरा हो जाएगा तो फिर हम आज़ाद हो जाएँगे। बल्कि एक रिवायत तो ये कहती है कि वालिदैन के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके हुकूक हमारे ऊपर आयद होते हैं और उनको अपनी दुआओं में याद रखना, उनके लिए आमाल सालिहा अंजाम देना और उनके लिए नेकियों को अंजाम देते रहना, ये ज़रूरी होता है और अगर उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद कोई उनको अपनी दुआओं में फ़रामोश कर दे, कोई उनके लिए आमाल सालिह का चैप्टर बंद कर दे और कुछ भी ना करे, तो खालिक़ कायनात उसको वालिदैन के नाफ़रमान लोगों में शुमार करता है। ये पहली बात। दूसरी बात जो हमें इस आया के इस हिस्से से समझ आती है, वो ये है कि वालिदैन के साथ नेकी, वालिदैन के साथ अच्छाई, वालिदैन के साथ फ़र्माबरदारी एक ऐसी सिफ़त है, एक ऐसी खूबी है कि जिस पर अंबिया को भी नाज़ था। और जब अंबिया की क्वालिटीज़ को खालिक़ कायनात ने बयान किया तो वबर्रन बिवालिदैहि कहा है हज़रत यहया के चैप्टर में। और हम ये देखते हैं कि हज़रत ईसा के चैप्टर में जब इन्हीं क्वालिटीज़ का तज़किरा हो रहा होगा तो वहाँ होगा वबर्रन बिवालिदती, मैं अपनी वालिदा का फर्माबरदार हूँ। सो ये वो क्वालिटी कि जिस पर अंबिया को नाज़ है और आम अंबिया नहीं है, ये बड़े-बड़े साहिबुल फ़ज़्ल और साहिबुल फ़ज़ाइल अंबिया हैं कि जिनके लिए वालिदैन का फर्माबरदार होना एक बहुत बड़ी मुमताज़ नेकी है। आप खुद अंदाज़ा करें ना, एक नबी जो दर्जा नबुव्वत पर फ़ाइज़ हों, अब उनकी नेकियों का स्टैंडर्ड और मर्तबा कितना बड़ा होगा। उनकी नेकियों में से भी खालिक़ कायनात ने जब उनकी नेकियाँ, उनकी अच्छाइयाँ या उनकी क्वालिटीज़ गिनवाना चाही हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ जो है वो वबर्रम बिवालिदैहि है, यानी एक मुमताज़ नेकी ये है, जिस पर अंबिया फ़ख्र करते थे, वो ये है कि वो अपने वालिदैन के फर्माबरदार थे और वालिदैन से अच्छा सलूक करने वाले थे। लिहाज़ा वालिदैन से मोहब्बत करना, वालिदैन से नेकी करना, वालिदैन का फर्माबरदार होना, वालिदैन से अच्छाई करना ये नबियों का ख़ासा है, जो शख्स ये करता है वो यकीनन सुन्नत अंबिया पर अमल कर रहा है। ये पहला जुमला। इसके बाद इरशाद कुदरत होता है वलम यकुन और वो ना थे। अच्छा इससे पहले अभी तक हम देखते हैं कि जितनी भी आयत गुज़री हैं उसमें तमाम वो क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि जो हज़रत यहया में पाई जाती थी। यानी व्हाट ही वाज़ वो क्या-क्या क्वालिटीज़ उनके अंदर मौजूद थी। अब गुफ्तगू की जा रही है वलम यकुन यानी व्हाट ही वाज़ नॉट यानी उनके अंदर क्या चीज़ नहीं थी। मैं पहले भी आपके सामने मुख्तसरन अर्ज़ कर चुका कि इंसानी ज़िंदगी में बैलेंस तभी होता है जब आप इन दोनों पहलुओं पर अमल करते हैं। अगर कोई शख्स सिर्फ़ इस चीज़ पर लगा रहा है कि मुझे क्या करना है तो बैलेंस नहीं होगा जब तक आप इस चीज़ पे मुतवज्जे नहीं होंगे कि मुझे क्या नहीं करना या किस चीज़ से बचना है। चूँकि हमारा तर्ज़ अमल मैंने अमूमन देखा है कि दीनदार बनने का जब हमारे अंदर एक सोच आती है, एक तर्ज़ अमल आता है तो हम अमूमन सिर्फ़ उस चीज़ की तरफ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कल से हमें ये काम करने हैं। इस तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम जाती है या बहुत देर से जाती है कि हमें कौन-कौन से काम नहीं करने। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा शाबानिया का वो अल्फाज़ आप सुनते रहते हैं कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी लिस्ट बताई कि माह रमज़ानुल मुबारक में कौन-कौन से काम करने का कितना बड़ा दर्जा है। यानी व्हाट यू विल बी डूइंग क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। वो सारी एक लिस्ट बताई कि माह रमज़ान में एक रोज़ादार फलाँ काम करता है तो ये नेकी, फलाँ काम करता है तो ये नेकी, फलाँ करता है तो ये नेकी, फलाँ करता है तो ये नेकी। और बाद में कुछ चीज़ों से मना भी फरमाया कि फलाँ-फलाँ कामों से परहेज़ करने की कोशिश करो। तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ सवाल किया था कि मा हिय अफ़ज़लुल आमाल फ़ी हाज़ा शहर। इस महीने का सबसे बड़ा अमल,
माह रमज़ान मुबारक की नेकी और माह रमज़ान मुबारक की भी सबसे बड़ी नेकी, यानी जब उस महीने का नेकियां आपकी किसी चैप्टर में लिखी जाएंगी और नाम अमाल में लिखी जाएंगी, तो उनमें से सबसे बड़े जली हरूफ में लिखी गई नेकी वो कौन सी नेकी होगी जिसका सबसे ज्यादा सवाब मिला होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब यही था कि अलवरा अन महरिमिल्लाह या अफदलुल आमाल फी हादा शहर। यानी क्या मतलब कि अपने आप को गुनाहों से बचा लेना। जैसे मैंने कहा ना, व्हाट ही वाज नॉट, यानी आप क्या कर रहे हैं बहुत अहम है, मगर उससे भी ज्यादा अहम यह है कि आपको क्या नहीं करना। तो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को यह जवाब दिया गया कि आपको जो नहीं करना है, यानी क्या मतलब है, यानी अपने आप को गुनाहों से बचा लेना। व्हाट यू विल बी डूइंग ये काफी नहीं है, बल्कि व्हाट यू विल नॉट डू इसकी लिस्ट भी जरूरी है। तब जाके हम सिक्योर होते हैं कि अब हम एक ऐसे मरहले पे आ गए हैं कि जहां ये सारे का सारा एक बैलेंस कायम हो सकता है। हमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ही का एक फरमान इस हवाले से मिलता है कि जिसमें आपने फरमाया था कि मल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह बिआज़म दरजतन मिम्मन क़दरा फ़अफ़ा। ये बड़ा खूबसूरत फरमान, जिसमें आपने फरमाया कि राह खुदा में जो शख्स जिहाद करने जाता है, राह खुदा में जख्म लेता है, अपने खून बहाता है, ज़हर अपनी फैमिली से दूर जाता है, मालो जान की कुर्बानी दे रहा होता है। जिहाद एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप हर चीज़ की कुर्बानी पेश कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि अपनी ज़ात और अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी भी पेश कर रहे होते हैं, अपना आप कुर्बान कर रहे होते हैं। सो मुजाहिद का और जिहाद फी सबिलिल्लाह करने वाले का बहुत बड़ा अजर है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुजाहिद का बहुत बड़ा दर्जा, बहुत बड़ा सवाब है। लेकिन मैं बताऊं, मुजाहिद का सवाब या जिहाद फी सबिलिल्लाह करने वाले शख्स का सवाब एक बंदे से कम है। एक ऐसा शख्स है जो उससे भी ज्यादा बड़ा सवाब का हामिल होता है। तो हम पूछते हैं कि अमीरुल मोमिनीन वो कौन है, कि जो एक वो शख्स है जो अपनी गर्दन कटवा रहा है, मगर आप ये फरमा रहे हैं कि इस गर्दन कटवाने वाले का सवाब एक और फर्द है उससे ज्यादा हरगिज नहीं है। तो आपने फरमाया कि मल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह बिआज़म दरजतन मिम्मन क़दरा फ़अफ़ा। राह खुदा में जिहाद करने वाले का सवाब उस शख्स से ज्यादा नहीं है कि जो गुनाह पर कुदरत होने के बावजूद खुद को गुनाह से बचा ले। यानी जिसकी लिस्ट में ये बात आई हुई है कि आई विल नॉट बी डूइंग दिस, मैं ये नहीं करूंगा, यानी उसका सवाब शहीद हो जाने वाले और जहाद फी सबीलिल्लाह करने वाले शख्स के बराबर कम अज कम इस रिवायत के मुताबिक बनता है कि जो किसी गुनाह पर कुदरत हासिल कर ले, मगर अपने आप को वलम यकुन के दर्जे में ले आए कि मैंने इसको करना नहीं है। इसी तरीके से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक फरमान एक और जगह पे है कि आपने फरमाया कि कादल अफीफ व यकून मलकम मिनल मलाइका। यानी गुनाह की कुदरत और ताकत और मौका भी है, महल भी है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन खुद को आप गुनाह से बचा लेते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ये बंदा फरिश्तों की सफ में शामिल हो सकता है, फरिश्तों की सफ में। लिहाजा गुनाह की ताकत ना होने की वजह से गुनाह से रुक जाना कमाल नहीं है। कमाल यह है कि इंसान के पास कुदरत गुनाह हो, गुनाह की अवेलेबिलिटी हो, सारी चीजें मौजूद हो, मगर इंसान गुनाह से अपने आप को बचा लेता है। तो इस शख्स के बारे में फरमाया कि ये शख्स शहीद फी सबीलिल्लाह या मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के बराबर अजर का मुस्तहिक बनता होता है। वलम यकुन, ये जुमला हमें अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि देखिए, हमें अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी लिस्ट बनानी है कि जिसमें हमने ये तय करना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं करना। और मैंने जो 3 फ़रामीन आपके सामने अर्ज़ किए हैं, इनकी रोशनी में तो ये लिस्ट पहले बननी चाहिए कि मुझे किन चीज़ों से बाज़ रहना है। लिहाज़ा जब भी हमारा अंदर एक सोच आती है, खुदा करे इंशाअल्लाह ताला, और आती रहनी चाहिए कि हमें दीनदारी को और शरीयत पर अमलदारी को यकीनी बनाना है, तो सबसे पहले जो लिस्ट बननी है वो ये है कि मैं ज़िंदगी में जो कर रहा था और गलत था, मुझे उससे रोकना है। अलबत्ता उसके पैरेलल में दूसरी लिस्ट भी बन रही होगी कि मुझे जो कौन-कौन से काम करने चाहिए थे और मैं नहीं कर रहा था, नमाज़ पढ़नी चाहिए थी, बाकी हुकूक की अदायगी करनी चाहिए थी और मैं नहीं कर रहा, तो उनको भी साथ में पैरेलल में वो लिस्ट बनेगी। लेकिन वलम यकुन की लिस्ट जो है उसके साथ बनेगी। जब तक वलम यकुन आप नहीं करेंगे, यानी कि हम उन कामों से बाज़ नहीं आएँगे, रुकेंगे नहीं जिनसे रुकना ज़रूरी है, तो तब तक हमारी नेकियाँ इस गुनाह से आलूदा होती रहेंगी जो हमारे वजूद के अंदर पाया जाता रहेगा। लिहाजा अपने वजूद को उन गुनाहों से की आलूदगी से पाक करेंगे, ताकि जब हमारे वजूद में उस नेकी आए तो वो नेकी पाक और साफ और शफाफ हालत में बाकी रहे। मगर ना ये ऐसे ही होगा जैसे एक बर्तन को बगैर धोए इस्तेमाल करना चाहें, आप उसमें कोई भी इस्तेमाल की चीज़ डालना चाहें, दूध डालना चाहें, पानी डालना चाहें, खाने पीने की चीज़ डालना चाहें, लेकिन वो बर्तन चूंकि गंदगी में और गलाजत में अटा हुआ था, धोया नहीं आपने, तो अब आपने जो उसके अंदर डाला है वो चीज़ भी काबिल इस्तेमाल नहीं रहती और ज़ाया हो जाती है। ऐसे ही है, जब तक वलम यकुन से हम बाज नहीं आते,
गुनाहों से, आलूदगियों से अपने आप को पाक नहीं करते हैं, तब तक की जाने वाली नेकियां हमारे दिल को, हमारे रूह को मुतासिर नहीं करती हैं, और वो भी आलूदा होती रहती हैं, और इंसान गुनाहों की तरफ बढ़ता है, बल्कि वो नेकी उसको गुनाह पे और आमादा करती है, क्योंकि उस नेकी के ऊपर वो सहारा ले रहा होता है कि मैं तो माशाल्लाह फलां काम भी अंजाम दिया, मैंने इतना सदका खैरात किया, मैंने फलां काम किया है, तो वो उसको गुनाह अपना छोटा लगने लग पड़ता है। लिहाजा सबसे पहले गुनाह से रोकना है और साथ में नेकियों की तरफ भी जाना है। वलम यकुन जब्बारन, और नहीं थे हजरत याहिया जब्बार। अच्छा, खालिक कायनात के नामों में से एक नाम जब्बार है। जब्बार के दो मीनिंग्स होते हैं। जब्बार बेसिकली जब्र से निकला है, और जब्र का, और अमूमन हम कहते हैं वुजू जबीरा एक एक लफ्ज इस्तेमाल करते होते हैं, एक और लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं फलां चीज का जुबरान कर लिया। इसके दो अपोजिट मीनिंग है। यानी एक मतलब इसका यह है कि हड्डी को जोड़ने वाला, वो जबीरा यही होती है ना, जब हमें जख्म लगता है, हड्डी टूटती है तो उसके ऊपर जो पट्टी बांधते हैं, सो हड्डी को जोड़ना, जख्म को ठीक करना भी जब्र कहलाता है। अच्छा, एक इसका मतलब होता है हड्डी तोड़ देना या नाफरमानी की तरफ चले जाना। तो ये यहाँ मतलब ये है कि वलम यकुन जब्बारन, यानी वो जब्बार वो शख्स होता है कि जो अपने लिए तो सारे हुकूक का कायल होता है, मगर दूसरों के हुकूक अदा करने के लिए आमादा और तैयार नहीं होता, जो अपने नफ्स की पैरवी करता है, जो लोगों के ऊपर जुल्म ढाता है, जो लोगों के लिए आप ये कह लीजिए कि उनके तमाम हुकूक को गसब करने वाला होता है। लिहाजा जब इंसान अपनी अंदर पाई जाने वाली सारी कुव्वतें, कवानीन खुदा की सरहदों को तोड़कर सर्फ कर रहा होता है, यहां भी तोड़ना है बेसिकली, सरकश हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं वो जब्बार हो गया है। सो वलम यकुन जब्बारन, हमें खाले के कायनात के कवानीन को तोड़ना नहीं है। हम जब भी कोई भी कानून खुदाबंदी तोड़ेंगे, किसी भी हलाल को हराम बना लेंगे या किसी भी हराम को हलाल बना लेंगे, किसी भी वाजिब को तर्क कर देंगे या किसी भी हराम को अंजाम दे देंगे, तो हमने कानून खुदाबंदी तोड़ दिया है। लिहाजा हम जब्बार बन गए हैं या जाबिर बन गए हैं कम अज कम। वलम यकुन जब्बारन, हजरत यहया जब्बार नहीं थे, और असिया यानी कि मासियतकार नहीं थे, अपने आप से अपने आप को गुनाह से आलूदा नहीं करते थे। आज की इस आया में हमारे लिए ये तीन पैगामात हैं, और तीन चीजें जो हमने जाननी है वो ये है कि सलामती परवरदिगार का मुस्तहिक बनने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने वालदैन के साथ नेक सलूक करें, अच्छा सलूक करें, उनकी खिदमत करें, उनके इताअत गुजार और फर्माबरदार बन जाएं। इस चीज को जहन में रखे बगैर कि मैं उनका बदला उतार रहा हूं या मैं उनको सिला दे रहा हूं, चूंकि उनको बदला उतारना या उनको सिला देना मुमकिन ही नहीं है। और वालदैन के साथ नेकी वो अजीम सिफत है इंसान के अंदर, जो अंबिया का खासा है, जिस चीज पर अंबिया को नाज था, जिस पर अंबिया को फख्र था। लिहाजा हमें सीरत अंबिया और अंबिया की क्वालिटीज को अपने अंदर पैदा करने के लिए अपने वालदैन का फर्माबरदार और उनका इताअत गुजार होना चाहिए। और दूसरा ये हमने आज की इस आया से जाना कि जहां हम बहुत सारे कामों को करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि खुदा के करीब हो जाएं, तो वहां बहुत सारे कामों को छोड़ देने से भी हम खुदा के करीब होते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जंग जमल में मौला अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के एक साथी थे जो उनकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं आपके साथ हूं और जंग में मैं आपके साथ शरीक होकर जिहाद फी सबीलिल्लाह करूं, और जब मैं आऊंगा तो मैं खुद और मेरे बच्चे और मेरी फैमिली सारी आएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मैं जंग में आपके साथ ना आऊं तो फलां कबीला जो है उसके मैं गालिबन मैं, जहां तक मुझे याद पड़ता है, 4000 जंगजुओं को रोक सकता हूं कि मेरी शिरकत ना करने के सबब वो भी शिरकत नहीं करेंगे। तो अब आप फरमाइए मुझे क्या करना चाहिए। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम जंग जमल में ना आओ मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारे ना आने की वजह से वो 4000 लोग जहन्नुम के रास्ते से रुक जाएंगे, वो नाफरमानी खुदा से रुक जाएंगे। लिहाजा बाज़ औक़ात कोई काम ना करना वो इंसान को जहन्नुम के रास्ते से रोक देता है। लिहाजा हमें ये जो वलम यकुन वाली लिस्ट है, जिन कामों से हमें बचना है और जिनसे अपने आप को परहेज कराना है और जिनसे दूर रहना है, उनकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो होना होगा इंशाअल्लाह ताला। सो दुआ है खालिक कायनात हमें अपनी जिंदगी में बैलेंस पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि हजरत यहया के चैप्टर में फरमाया कि काना यानी वो क्या क्या थे और क्या क्या क्वालिटीज उनमें पाई जाती थी, वलम यकुन और कौन कौन सी क्वालिटीज से और कौन कौन से कामों से वो इज्तिनाब करते थे, यूं ही खालिक कायनात हमें अपनी जिंदगी में कवानीन खुदाबंदी को इस तरह से फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए कि जो वो चाहता है वो सब करते हुए नजर आए, और जिसको वो नापसंद करता है इंशाअल्लाह ताला जिंदगी की हर सांस में उससे बचते हुए और उससे दूर भागते हुए नजर आए। और खालिक कायनात से दुआ है कि खालिक कायनात हम सबको हालत ईमान में इंशाअल्लाह